Hello students, so today in this video we are going to start with the new chapter, that is limits. Limits is the chapter number 13 in your +1 class mathematics. So what are limits? Basically it is limits and derivatives. This is the first part we are going to do over there, that is limits. So limits क्या होता है? What are limits? So if we talk about the limits, what they are, limit is basically checking the existence of a point. Checking the existence of a point. For example, just check that. So I made a graph where this is your x-axis and this is your y-axis. And we do have a function that is f. Let's say I am talking about any point on x-axis, that is any at x is equals to. Now at this point at x equals 2, I want to check whether the point exists or not. Or in simple terms, if I will say what is limit, it is the way to check that when we are reaching the 2. When we are reaching the 2. What does it mean? कि I am coming from a lower value like -8, -2, -1, 0, 1 up to 2. I am reaching the value. या फिर we are coming from the higher value 8, 7, 6, 5, 4, 3. Whether I am reaching from the left side to this value or whether I am reaching from the right side to this value. Either from left or right. The corresponding value of y, we have to check the corresponding value of y. Whether that reaches to the same point or not, that is what we call limit is. We check the value reaches to same point or not. चलिए सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं. Let's say this is x equals to 2 and I am coming from a lower value. मैं x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूँ. Let's say there is a value x equals to -1. We can come from anywhere. It is not defined. Just I am taking one example. I am coming from this point. X value is getting increased. X की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है. बिल्कुल 2 के नियर बाय. बिल्कुल 2 के नियर बाय पहुंचे. And the corresponding how y is changing. जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, पहले तो y की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज. Then it is getting turn and we are reaching to this point. Just check it out here. कि क्या होता है? जैसे जैसे x वेरी करते हैं, y वेरी करते हैं. जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू पहले क्या हो रही थी? इंक्रीज. And it's going and it reaches to this value. अगर मैं इसे डिनोट करूँ, जैसे this is value L की अगर करूँ, let's say this is value 4. So लेफ्ट से मैं आया और जैसे ही मैं 2 के पास जा रहा हूँ, y की वैल्यू कहाँ पहुँच रही है? 4 पे. वैसे ही हमने राइट से आया. वैल्यू जैसे मैंने 7 से स्टार्ट किया, वैल्यू डिक्रीज होती आ रही है एंड आई एम रीचिंग 2. कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पहले क्या हो रही थी? हल्की सी डिक्रीज. देन इट टर्न एंड फाइनली जैसे मैं 2 के पास पहुंचा, y की वैल्यू राइट से भी कहां पहुंची? एट 4. दैट मींस मैं लेफ्ट से आया तो भी y की वैल्यू 4 आई. मैं राइट से आया तो भी y की वैल्यू 4 आई. एंड लेफ्ट से आने का मतलब है वी आर चेकिंग द लेफ्ट लिमिट. राइट से आने का मतलब है वी आर चेकिंग द राइट. I will explain all the terms. Just wait and watch. If both are equal, we say limit exists. If both are equal, we say limit exists. जैसे कि मैं लेफ्ट से आया तो भी आंसर क्या आया? 4. मैं राइट से आया तो भी आंसर क्या आया? 4. That means लेफ्ट से भी 4, राइट से भी 4, दोनों से सेम वैल्यू पे आ रही है. So that means limit is exist. Clear? चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ. Let's say we have a plane, anything, कोई भी सरफेस है, ठीक है. यहाँ पे कोई बाउंड्री है.
इधर से लेफ्ट एक ही मतलब एरिया है, इससे राइट बी का एरिया, लेफ्ट पे ए का एरिया, राइट पे बी का एरिया, एंड दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री। अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो बाउंड्री को हम क्या कह सकते हैं, लिमिट, क्या कह सकते हैं, लिमिट, कि ए की लिमिट यहां तक है, इधर से बी की लिमिट यहां तक है, ठीक है। लेट्स से मैंने ए ने क्या किया, थोड़ा सा उधर को पार्टीशन दिया, यहां पे निकाला, whether this will exist or not, for sure it will not, because it goes in the area of B। जो ये लाइन की पार्टीशन थी, अगर ए ने यहाँ पे निकाली होती तो ये बी के एरिया में चली जाती, और बी को वो मंजूर नहीं था, दैट मीन्स दिस विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दे हैव द मिसमैच थिंकिंग पैटर्न्स। ए को लग रहा है कि यहाँ पे, पर बी को लग रहा है कि यहाँ पे नहीं आएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बड़ी सिंपल सी क्या है, अगर यहाँ पे निकाले तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी कहेगा यहाँ पे निकालो, ए कहेगा यहाँ पे निकलेगी नहीं, दोनों की थिंकिंग डिफर कर गई, तो यहाँ पे भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। बट अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ए भी कह रहा है यहीं पे होनी चाहिए, बी भी कह रहा है यहीं पे हो रही है, दोनों की मेंटालिटी सेम है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। सिंपल, जैसे आपकी घर की चार दीवारी होती है, वो कब एग्जिस्ट करती है, जब आप और आपके नेबर दोनों का थिंकिंग पैटर्न सेम है कि ये दीवार यहीं पे निकलनी चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप किसी के एरिया में निकालोगे तो भी वो गिरेगी, अगर कोई आपके एरिया में निकालेगा तो भी वो गिरेगी। तो वेरी सिंपल फंडा कि अगर दोनों की थिंकिंग सेम है तो ये बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। वैसे ही किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब पॉइंट के लेफ्ट पे और पॉइंट के राइट पे वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि मैं लेफ्ट से आया, बिल्कुल लेफ्ट, मैंने 2 पे नहीं जाना, 2 के नेबर में रहना है, लेफ्ट नेबर में, तो वैल्यू कितनी है भाई की, 4। मैं राइट से आया, मैंने 2 पे नहीं पहुंचना, 2 के नेबर में रहना है, राइट नेबर में, वैल्यू कितनी आई, 4। लेफ्ट से भी 4 आई, राइट से भी 4 आई, देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट। सो दैट इज अ सिंपल कंसेप्ट, जैसे कि फुल लाइफ में लगता है कि बाउंड्री कब एग्जिस्ट करती है, जब एक पर्सन और उसका जो नेबरहुड है दोनों की थिंकिंग क्या है, सेम है। वैसे लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड और पॉइंट के राइट नेबरहुड में वैल्यू y की क्या आती है, सेम आती है। अब लेफ्ट नेबरहुड का क्या मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी 2 नहीं होगी, 2 से स्मॉल आएगी, थोड़ी सी स्मॉल, इट कैन बी 1.999999 and so on. It's not a perfect value, but approximately कि इतना नजदीक होगा, इसे कहते हैं लेफ्ट नेबरहुड। जब मैं राइट से आया तो वैल्यू कितनी होगी, 2.00000001, इसे कहते हैं राइट नेबरहुड, कि वैल्यू 2 नहीं, 2 से याद है बट हल्की सी याद है, दैट इज द राइट नेबरहुड, ठीक है। सो व्हाट इज लिमिट, लिमिट में हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड को चेक करते हैं, लेफ्ट नेबरहुड में y की वैल्यू चेक करते हैं, पॉइंट के राइट नेबरहुड में y की वैल्यू चेक करते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई तो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, अगर दोनों वैल्यू डिफर करती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल लिमिट एक वन बोलेंगे, लेट्स से ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, and I'm checking the value at this point. Again, let's say this is x equals to 2. Just try to understand. अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूं, आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता just try to understand what is this. इसका क्या मतलब होता है, this is open bubble, this is closed bubble, this is open bubble, this is closed। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 2 पे बात करूंगा तो 2 पे जो वैल्यू है वो j वाली नहीं काउंट होगी, वो कौन सी रहेगी, दिस वन, क्योंकि मैंने इसे ओपन कर दिया यानी कि इसे काउंट नहीं करना, इसे डार्क कर दिया यानी कि इसे काउंट करना है। क्लियर, लेट्स से दिस वैल्यू इज 6, लेट्स से दिस वैल्यू इज 4।
अब अगर मैं आपसे पूछूं x2 पे वैल्यू क्या है 6, x2 पे वैल्यू क्या है 6। अभी मैं लिमिट देखूंगा, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड। अब लिमिट के लिए मुझे लेफ्ट से आना पड़ेगा कि x की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और 2 के पास जा रही है एंड उसके लेफ्ट नेबरहुड में आ रही है। लेफ्ट नेबरहुड यानी कि दिस वे अप्रॉक्सीमेटली। आप 2 9 और भी डाल सकते हैं, 2 कम भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट नेबरहुड में आया y की वैल्यू चेंज होते 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 इस पॉइंट पे पहुंची, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 4। जब मैं राइट से आऊंगा, जैसे मैं राइट से आ रहा हूं उसके राइट नेबरहुड में, तो y की वैल्यू इंक्रीज होते 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 कहां पहुंची दिस पॉइंट, यानी कि 6। अभी हम यहां पे ध्यान से देखना कि लेफ्ट से आया तो y की वैल्यू 4 आई, राइट से आया तो y की वैल्यू 6 आई। लेफ्ट से कुछ और आ रहा है, राइट से कुछ और आ रहा है, तो यहां पे मैं कहूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। जबकि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि लिमिट होती क्या है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे वैल्यू की एग्जिस्टेंस देखनी होती है, ठीक है। अब वो चेक कैसे करते हैं, हम उस पॉइंट के लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट नेबरहुड में, उस पॉइंट के राइट नेबरहुड में देखते हैं। अगर वैल्यू सेम आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर सेम नहीं आती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ अगर इस चीज को हम मैथमेटिकली इंटरप्रेट करें, क्योंकि हमें तो मैथ्स करना है, दिस इज ग्राफिकल, मैथमेटिकली इंटरप्रेट करें तो क्या करेंगे। तो अभी यहाँ पे पॉइंट शुड बी क्लियर। फर्स्ट हमारे पास एक लेफ्ट नेबरहुड में चेक करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं लेफ्ट लिमिट। एक तो लेफ्ट लिमिट है, एक हम राइट नेबरहुड में चेक करेंगे, जिसे क्या कहते हैं राइट लिमिट, जिसे क्या कहते हैं हम राइट लिमिट। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी स्पेस में रहूंगा। ओके, उसके लेफ्ट में चेक करूंगा उसे कहते हैं लेफ्ट लिमिट, उसके राइट में चेक करूंगा उसे कहते हैं राइट लिमिट। थोड़ा मैं नीचे करके 12 लिख रहा हूं। लेफ्ट लिमिट LL, राइट लिमिट R, ठीक है। अब अगर लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम आती है, यानी कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम आती है, तो हम कहेंगे कि लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है। अगर सेम नहीं आती विल से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब पॉइंट इज दैट कि लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मोर ओवर लेफ्ट लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, ठीक है। आई थिंक लिमिट का कंसेप्ट क्लियर होगा। जब भी हमें लिमिट चेक करनी है तो हम उसके लेफ्ट नेबरहुड में देखते हैं, उसके राइट नेबरहुड में देखते हैं। सेम आ गया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंट आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ध्यान देना। लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज LIM, लिमिट LIM। कई बुक्स वाले और या टीचर्स या बच्चे LTB यूज कर लेते हैं लाइक दिस, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज LIM के बाद हम उस पॉइंट की बात करते हैं जिस पे लिमिट देख रहे हैं। हम किस पे देख रहे थे 2 पे। तो मैं क्या करूंगा, वैसे कि जो x की वैल्यू है एरो 2, x एरो का 2 का क्या मतलब है। अब ध्यान देना, जब हम 2 पे लिमिट चेक कर रहे थे, चाहे मैं लेफ्ट से है चाहे मैं राइट से है, जो x की वैल्यू है वो किस पे पहुंच रही थी 2 पे, 2 के नेबरहुड में। लेफ्ट और राइट x की वैल्यू वाज अप्रोचिंग टू 2। सो इस एरो का क्या मतलब है, इसे प्रोनाउंसिएट अगर हम करेंगे वैसे अप्रोचेस टू, वैसे अप्रोचेस टू मतलब कहीं पे पहुंच रही है, ठीक है। x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। एंड किसके लिए पहुंच रही है, द फंक्शन fx, किसके लिए पहुंच रही है, द फंक्शन fx। सो ऐसे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx, fx के लिए मैं लिमिट चेक कर रहा हूं, जब x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, यानी कि किस पे चेक कर रहा हूं 2 पे, क्योंकि 2 को अप्रोच कर रहा है चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। अब मुझे स्पेशली लेफ्ट लिमिट दिखानी है, तो लेफ्ट लिमिट दिखाने के लिए
मुझे पता है हम लेफ्ट नेबरहुड की बात करेंगे। अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो ये वैल्यू 2 के लेफ्ट में होगी, अगर लेफ्ट में होगी तो वैल्यू 2 से क्या होगी, कम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है दिस वैल्यू इज नियर बाय 2 बट दिस वैल्यू इज लेस देन 2। तो उसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सही करके लिखेंगे। तो उसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पे एक नेगेटिव साइन यूज करेंगे। 2 पे हम क्या यूज करेंगे, एक नेगेटिव साइन। x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, व्हाट डज इट मींस कि x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 2 नेगेटिव यानी कि 2 से लेस की ओर, यानी कि लेफ्ट। अगर हम राइट लिमिट की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो हम इसे कैसे शो करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 2 फॉर द फंक्शन। So this is a mathematical interpretation of limit कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x approaches to 2 negative, it's a left limit. We are writing limit x approaches to 2 positive, it is a right limit. Now, after solving these, जो हम क्वेश्चन करेंगे you will come to know कैसे सॉल्व करना है, वो मैं बाहर बताऊंगा। After solving these, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, I will say लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू भी वही है, राइट की वैल्यू भी वही है, लेफ्ट से भी वहीं पहुंच रहे हैं, राइट से भी वहीं पहुंच रहे हैं, तो लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर। बट यहाँ पे कुछ एड ऑन है। अभी क्या है कि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम है, बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को, लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम है। मैं लेफ्ट से आऊं तो भी सेम वैल्यू आ रही है, मैं राइट से आऊं तो भी सेम वैल्यू आ रही है। सो डज इट रियली मैटर्स कि मैं किस ओर से आऊं? अगर मुझे जनरली इसे सॉल्व करना है, ये तो हो गया चेकिंग कि हो रही है एग्जिस्ट या नहीं। अब जब एग्जिस्ट हो रही है टू फाइंड दैट टेल मी कि मैं लेफ्ट सॉल्व कर या राइट, मैं कोई भी कर सकता हूं, क्योंकि लेफ्ट से आ रहा हूं तो भी वही आंसर है, राइट से आ रहा हूं तो भी वही आंसर है। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है then this sign doesn't matter, we can write it directly limit x approaches to 2 for the function, we can write directly limit x approaches to 2 for the function fx। अब मैंने ना तो पॉजिटिव वाला ना नेगेटिव, इट मींस x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, किसके लिए, fx के लिए। अब वो लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, डजंट मैटर, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इज दैट क्लियर? सो पॉइंट टू बी क्लियर कि एक लेफ्ट लिमिट होती है, एक राइट लिमिट होती है, इफ दे आर इक्वल लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लेफ्ट लिमिट को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, राइट लिमिट को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, अगर वो इक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सो इट डजंट मैटर कि मैं लेफ्ट से हूँ राइट से हूँ, तो हम जनरली क्या लिख देते हैं, x अप्रोचेस टू 2। मुझे 2 पे जाना है, 2 के नजदीक जाना है, चाहे लेफ्ट से हूँ चाहे राइट से। सो लिमिट इज एग्जिस्टिंग। सो डियर, अगर नेगेटिव लिखा होगा इंटरप्रिटेशन, अगर नेगेटिव लिखा होगा तो वो लेफ्ट लिमिट है, अगर पॉजिटिव लिखा होगा वो राइट लिमिट है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वो जनरल लिमिट है जो लेफ्ट को भी रिप्रेजेंट कर रही है और राइट को भी। पर वो कब लिख सकते हैं, जब लेफ्ट एंड राइट दोनों क्या होंगी, इक्वल। जैसे कि अभी क्वेश्चन किया था, ठीक है, ग्राफिकली कि लेफ्ट से वैल्यू 4 आ रही थी, राइट से 6 आ रही थी, ठीक है ना, ऐसी तरह लेफ्ट से 4 आ रही थी, राइट से 6 आ रही थी। अब वहां पे मैटर करेगा कि अगर मैं लेफ्ट से आऊंगा तो आंसर 4 आएगा, अगर मैं राइट से आऊंगा तो आंसर 6 आएगा। अब वहां पे नहीं मैं कह सकता कि इट डजंट मैटर लेफ्ट और राइट, क्योंकि अगर मैं कहूंगा डजंट मैटर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से 4 आ रहा था, राइट से 6 आ रहा था। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं ऐसे 4 लिखूंगा या 6 लिखूंगा, कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 इज फॉर लेफ्ट एंड 6 इज फॉर राइट। तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। बट अगर दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे दोनों की वैल्यू 4 आई थी, राइट से ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों क्या है, 4 है। अगर दोनों की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी 4 की। वेट डिपेक्ट्स बोथ, उनको ही दिखा रहा है ये, वो लेफ्ट एंड राइट से ये दिखा रहा है कि लेफ्ट और राइट ऑफ आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि लेफ्ट लिमिट क्या होती है, राइट लिमिट क्या होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट दिस जनरल लिमिट। ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ है और हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो इट मीन्स मैं इसे लेकर चल रहा हूँ कि उसकी लेफ्ट एंड राइट लिमिट क्या है, सेम है। कंसिडर दिस, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मैं तभी करूँगा अगर मैं लेकर चलूँगा कि लेफ्ट एंड राइट इक्वल है। अगर लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं है तो वहाँ पे मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता और मुझे चेक करना। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थोड़ा सा। ठीक है, और लेटर आई विल टेल मोर एंड मोर थिंग्स अबाउट दिस कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट आता है कि लेफ्ट एंड राइट को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व लेफ्ट लिमिट एंड हाउ टू सॉल्व राइट लिमिट। चलिए मैं लेफ्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव फॉर द फंक्शन f। अभी मुझे इसे सॉल्व करना है। सो पॉइंट इज दैट यहाँ पे कुछ नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ा सिंपल सा फिगर बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना। अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा तो वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 2। एक थी 1.999999 समथिंग, एक थी 2.00001 समथिंग। ठीक है, तो वेरी क्लोज टू 2 है ना, तो हम अप्रॉक्सीमेटली भी 2 मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे दिया होता है तो हम x की वैल्यू डायरेक्टली क्या पुट कर देते हैं 2। x की वैल्यू डायरेक्टली क्या पुट कर देते हैं 2। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा f(2), जो भी फंक्शन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। बट अगर वो लेफ्ट लिमिट है, अगर वो लेफ्ट लिमिट है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन जिसको मेरे कंसिडरेशन में रखना है। ठीक है, +2 में अलग पॉइंट आ गया, वहां पे हम नहीं करते ज़्यादा सॉल्व, डायरेक्टली भी कर लेते हैं, हो भी जाएगा। बट दिस इज योर +1, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सॉल्व करके सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, अभी x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव क्या क्या है कि वो लेफ्ट लिमिट है, वो लेफ्ट नेबरहुड में है, उसकी वैल्यू 2 से क्या होगी, लेस। चलिए उसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि x की वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 1.9999। अब जितने भी लिख लो आपके अपनी चॉइस है। अगर इसमें इसे मैं 2 के कंपैरिजन में लिखूं, कहने से दिस इज नथिंग बट 2 माइनस 0.0000001 2.00001। हाँ, तो 2 से इसे माइनस करोगे तो यही आएगा। अभी मैं क्या करूँ, इस वैल्यू के एक नाम दूंगा, हम नेमिंग इट टू बी h। इसे मैं एक नाम दे रहा हूँ, हम नेमिंग इट टू बी h। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस h, 2 माइनस h। ठीक है, अभी h की वैल्यू देखिए आप, इट इज 0.0000001, वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, 0 के। तो मैं क्या करूंगा कि जो h है ना, जो h है वो किसे अप्रोच कर रहा है, 0। h किसे अप्रोच कर रहा है, 0। इट्स नॉट 0, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, नियर अप्रोच। ठीक है, तो दिस इज अ सम फंडामेंटल जो आपको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, इन +1 नॉट इन +2 उसमें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव होगा आपको ये नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, x = 2 माइनस h। यहाँ h किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। ये जो चीज है ना, ये बना पार्ट, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, अभी इसे चेंज करते हैं, तो क्या होगा इससे, मैं x को क्या लिख रहा हूँ, 2 माइनस h, तो ये फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, 2 माइनस h। फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 माइनस h, क्योंकि मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 माइनस h। लिमिट, अभी ध्यान देना चाहिए, अगर वेरिएबल x है तो लिमिट x की होगी, अगर यहाँ y होगा तो लिमिट y की, अगर यहाँ पे h है तो लिमिट मुझे किसकी चाहिए, h की। अब मैं x नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, h। लिखना कैसे है, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, सो आई विल से h अप्रोचेस टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
x की जगह 2 माइनस एच पुट कर दिया, ठीक है, और h के फॉर्मेट में लिखा लिमिट, तो h अप्रोचेस टू क्या हो गया, ये, एंड दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज l, ठीक है, l i, ठीक है, सो थोड़ा सा लेटर का ऐसे है, ठीक है। अभी सॉल्व कैसे करना है, बड़ा सिंपल, h को लेफ्ट कर देंगे 0, क्योंकि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सो मेरे पास क्या रहेगा, आंसर आएगा। सो दिस इज अ वे जिससे हम लेफ्ट लिमिट को सॉल्व करते हैं। क्लियर? नाउ अगर राइट लिमिट होती तो यहाँ पे क्या होता, प्लस, यहाँ पे क्या होता, प्लस होता, तो वैल्यू 2 से कम नहीं होनी थी, 2 से क्या होनी थी, 0, तो से याद होनी थी, तो जो यहाँ पे मैं लिखता 2 माइनस नहीं करना था, मुझे क्या करना था, 2 प्लस करना था, 2 प्लस करना था, तो इसको मैंने फिर नाम क्या दे देना था, h नाम दे देना, 2 प्लस h हो गया, बट अगेन h की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल है, तो हमेशा h अभी भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ठीक है। तो अभी मैं चेंज करूंगा, x की वैल्यू 2 माइनस h की बजाय क्या होगी, 2 प्लस h, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा, 2 प्लस h, और अगेन h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो लिमिट h किसको अप्रोच करेगा, अपने पास 0 को अप्रोच करेगा। सो दिस इज द समवट काइंड ऑफ वे जिससे हम लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। लिमिट क्या होती है, हाउ टू सॉल्व लिमिट, लेफ्ट लिमिट क्या होती है, राइट लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट कब करती है, कब हम विदाउट साइन लिख सकते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बिना, कब हम नहीं लिख सकते, अगर नेगेटिव है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, अगर पॉजिटिव है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, दैट हाउ वी कैन चेक व्हेदर लिमिट इज ट्रू। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आए, यू गाइस कैन कमेंट बिलो द वीडियो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, और आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गिवन विद अ फंक्शन f of x is equals to 2 minus x square. f of x is equals to 2 minus x square. And I have to check the limit at x equals to 3 and x equals to 3. यानी कि चेक का क्या मतलब है, यहाँ पे मुझे वैल्यू डिफाइन करनी है। I have to check existence of the limit. लिख सकते हैं यहाँ पे existence at x equals to 3. मुझे 3 पे लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब बड़ा फ्रेमवर्क को ध्यान में लाइए, ठीक है, मुझे लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो मुझे दो लिमिट चेक करनी होगी, लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट नेबरहुड। लेफ्ट मीन्स लेफ्ट लिमिट, राइट मीन्स राइट लिमिट। किसके लेफ्ट किसके राइट, 3 के, क्योंकि मैं 3 पे लिमिट चेक कर रहा हूँ, तो 3 के लेफ्ट में चेक करूंगा, 3 के लेफ्ट। सो फॉर लेफ्ट लिमिट I will say limit x approaches to 3 negative, x approaches to 3 negative for a function। अभी यहाँ फंक्शन क्या है, 2 minus x square, minus x square। सो ये हमारी लेफ्ट लिमिट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। वैसे अगर हम इसकी राइट लिमिट भी लिखें तो राइट लिमिट कैसे लिखी जाएगी, लिमिट x approaches to 3 positive 2 minus x square, 2 minus x square। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट लिमिट को सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, 3 नेगेटिव है तो वैल्यू 3 से कम है। कितनी कम है, स्मॉल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x को क्या पुट कर सकता हूँ, 3 माइनस समथिंग, और समथिंग को हम क्या नाम देते हैं, h नाम देते हैं, 3 माइनस h, ठीक है। तो मैं x को क्या पुट कर लूंगा, 3 माइनस h। अब
ये पुट किया, सो इट विल कम लिमिट ब्रैकेट में 2 माइनस x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 माइनस h होल स्क्वायर। अभी h पे आ गया तो यहाँ पे लिमिट x की नहीं लिखेंगे, हम किसकी लिखेंगे h में लिखेंगे। सो h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। इज दैट क्लियर हो पाता है यहाँ तक? अभी इसे सॉल्व क्या करना है, बड़ा सिंपल है, मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो तो डायरेक्टली h की वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो। तो h की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0। अगर h की वैल्यू पुट की तो इट विल बिकम 2 माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो एज इट इज माइनस 3 माइनस h की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक ही यहाँ पे ध्यान रखना, ये लिमिट तब तक लिखनी है जब तक h की वैल्यू पुट नहीं कर देते। जब h की वैल्यू पुट कर दी तो लिमिट का काम खत्म, बस एक वैल्यू रह जाएगी फिर, एंड इट विल कम 2 माइनस 3 माइनस 0 3 3 स्क्वायर इज 9, सो आंसर कम्स आउट टू बी -7। चलिए अब राइट लिमिट पे चेक करते हैं। अभी चेंज क्या होगा, ये 3 पॉजिटिव है तो वैल्यू 3 से क्या है ज्यादा है, सो x को हम क्या पुट करेंगे 3 प्लस h, 3 प्लस h। तो ये बराबर चेक करते हैं लिमिट। अभी तो मुझे पता है यहाँ पे x की क्या आएगा h आएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस x की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर। अभी h की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या होगा 2 माइनस 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 0 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 9 एंड माइनस 7, माइनस 9 एंड माइनस 7। ठीक है, अभी लेफ्ट में माइनस 7 आया, राइट में माइनस 7 आया, दोनों क्या होगी इक्वल होगी, तो लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट। अभी अगर मैं थर्ड में चेक करके दिखाऊं आपको तो आप देखना कि थर्ड का आंसर भी सेम आएगा। कैसे, x अप्रोचेस टू 3, ना मैंने पॉजिटिव लिखा ना मैंने नेगेटिव लिखा, मैंने जनरल लिमिट लिखी है क्योंकि मुझे पता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट से भी वही है कि राइट से भी वही है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, कोई h डायरेक्टली पुट करो, 2 माइनस 3 स्क्वायर 2 माइनस 9 अब चेक कीजिए, जो लेफ्ट की वैल्यू वही राइट की वैल्यू वही चल रहा है, एंड इट ऑलवेज हैपेंस व्हेनेवर लिमिट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू वही इसकी होगी, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, इसकी आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो ये तो हो गया सिंपल फंक्शन, एक सिंपल सा फंक्शन है एंड उसकी लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है। अभी नेक्स्ट मैं बात करूंगा ब्रेक फंक्शन की। यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोट और टिप बता रहा हूँ, व्हाट इज दैट, कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन सेम है, लेफ्ट के लिए फंक्शन और राइट के लिए फंक्शन, दोनों के लिए फंक्शन सेम है, तो लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट, लिमिट हमेशा क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट के लिए भी फंक्शन क्या था सेम था, यहाँ पे राइट के लिए भी फंक्शन क्या था सेम था, तो लिमिट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। वो अलग बात आपको दिखाना होगा सॉल्व करके, बट प्लस 2 में जब आप यूज करोगे यू विल डायरेक्टली कंसिडर इट टू बी एग्जिस्टिंग। क्लियर? अब पॉइंट इज दैट ये तो सेम ही रहने वाला है, अलग अलग भी होगा, क्योंकि जब भी फंक्शन होगा लेफ्ट में भी मैं सेम फंक्शन लिखूंगा, राइट में भी सेम फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन तो ऑलवेज सेम होगा, तो क्या लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी? दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ब्रेक फंक्शन। ब्रेक फंक्शन, चलिए मैं बताता हूँ व्हाट इज ब्रेक फंक्शन। मैं जरा ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ओके, ब्रेक फंक्शन है, ब्रेक मीन्स डिवाइडेड on some particular basis. For example, I'm saying one function. I'm saying one function, which will be, it may be 2 minus x square, or it may be x square plus 1.
2 माइनस एक्स क्या होगा व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड ये कब होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ऐसे ये करना है। अब इसे ब्रेक फंक्शन जो बोलते हैं यार, दिस इज ब्रेक फंक्शन क्योंकि दिस इज ब्रेक एज पर सम डोमेन पार्ट। अब चेक कीजिए कि जो fx है वो 2 माइनस एक्स के भी होगा, जो fx है वो x के प्लस से 1 भी होगा। ऑब्वियस है सेम टाइम पे दोनों तो नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से 9 से 9:40 आपका मैथ्स का लेक्चर है स्कूल में या कहीं भी। 9:40 से 10:20 आपका फिजिक्स का लेक्चर है। 10:20 से 11 आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है। चलिए ये कोई शेड्यूल है 9 से 11 का। 9 से 9:40 मैथ्स, 9:40 से 10:20 फिजिक्स, 10:20 से 11 केमिस्ट्री। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे पता है कि 9 से 9:40 मैथ्स है फिक्स है, 9:40 से 10:20 फिजिक्स है फिक्स, 10:20 से 11 केमिस्ट्री है फिक्स है। अभी अगर मैं पूछूं एट 10:45 आपका कौन सा लेक्चर होगा, एट 10:45 आपका कौन सा लेक्चर होगा। 10:45 ऑब्वियस है मेरा फर्स्ट लेक्चर भी आ चुका है, मेरा सेकंड लेक्चर भी आ चुका है, सो ऑब्वियस आंसर विल बी केमिस्ट्री। 10:45 पे केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा होगा। अगर मैं कहूं 10:05 AM पे आपका कौन सा लेक्चर होगा बताइए। सही गेस किया होगा 10:05 यानी कि 9:40 से 10:20 के बीच है, सो इट विल बी फिजिक्स लेक्चर। अगर 9:40 से 9 के बीच की बात करूंगा तो इट विल बी समवट मैथ्स लेक्चर। अगर मैं बात करूंगा 8:20 की तो आई डोंट नो कौन सा लेक्चर होगा क्योंकि मेरे पास उसका डेटा नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज व्हाट कॉल्ड ब्रेकिंग। आपका 9 से 11 का जो टाइम है उसे ब्रेक किया गया है प्रॉपर। कैसे ब्रेक किया गया है? 9 से 9:40 का ब्रेक कि आपका मैथ होगा, 9:40 से 10:20 का ब्रेक कि आपका फिजिक्स होगा, 10:20 से 11 का ब्रेक की जाए आपका केमिस्ट्री होगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रेक फंक्शन, ब्रेक वैल्यूज, ब्रेक थिंग्स। अगर आप यहाँ पे थोड़ा कंसीडर करें तो ये फंक्शन है ना वो कब है when x is greater than 0 and less than 1, यानी कि जब x 0 से 1 के बीच होगा तो ये वाला फंक्शन। सेकंड फंक्शन कब है when x is greater than equals to 1, यानी कि जब x 1 और 1 से ज्यादा है तो आपका ये फंक्शन होगा वो क्या होगा x के प्लस 1। फॉर एग्जांपल चलिए बात करता हूँ just a minute. Okay, let's see. अगर मैं कहूँ x is 2 तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? Obviously 2 है, 2 is greater than 1 and अगर greater than 1 है तो this one. It means for that the function is equals to x plus 1. अगर x is 0.5 मुझे पता है 0.5 which is less than 1 and greater than 0 तो यहाँ पे आ गया। तो मैं कहूँगा मेरा फंक्शन क्या है इसके लिए 2 minus x। अगर मैं कहूँ x is 1 अब चेक कीजिए 1 के इक्वल है तो फर्स्ट केस में तो इक्वल नहीं है दैट इज लेस देन 1। सेकंड केस में ग्रेटर भी है इक्वल भी है, यानी कि इक्वल के लिए तो फंक्शन होगा मेरा दैट विल बी x प्लस 1। अगर मैं पूछ लूं x इक्वल्स टू -3 के लिए, अब -3 के लिए तो ये बताया नहीं क्योंकि मुझे बताया है 1 तो 1 से ग्रेटर यानी कि हर एक पॉजिटिव वैल्यू, 0 से 1 तक यानी कि 0 से 1 के बीच, 0 से लेस के बारे में मुझे बताया नहीं है। दैट मींस आई विल से fx is not defined, fx डिफाइंड नहीं है तो माइनस। आई होप आपको ब्रेक फंक्शन क्लियर होगा।
ठीक है, चलिए मैं इस पर लिमिट लिखवा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देन विल सम ऑफ द थिंग्स विद सम एट्रीब्यूट्स। Okay. Now let's consider this. Let's say I want to जो मैसेज कर देता हूँ। चलिए मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है। लिमिट एक्जिस्टेंस I have to check at x equals to 1। किस पे लिमिट चेक करनी है मुझे? x equals to 1 पे कि वो एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। अभी एग्जिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा? मैं लेफ्ट लिमिट निकालूंगा, मैं राइट लिमिट निकालूंगा। चलिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, दिस आर द लेफ्ट लिमिट। लिमिट x approaches to 1 positive, दिस आर राइट लिमिट। Now point is that we have to judge the function as well। जब तो सिंपल फंक्शन था, कुछ नहीं देखना था, लेफ्ट के लिए वही लिख दिया, राइट के लिए वही लिख दिया, खत्म। बट जब बिग फंक्शन है, यू हैव टू चेक कि आई एम सेइंग x इज अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा कि जो x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव है, इसका मतलब है कि x 1 के लेफ्ट नेबरहुड में आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 1 से कम है, 1 के इक्वल ही होगी, 1 से कम होगी। अगर x की वैल्यू 1 से कम है, पर है तो 1 के नजदीक ना, कम से मतलब ये तो नहीं है कि -3 है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.99999 इस तरह है। तो 1 से कम है बट 0 से बहुत ज्यादा है। सो 1 और 0 के बीच में फंक्शन कौन सा यूज होगा? फर्स्ट वन। तो यहाँ पे जो मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ वो कौन सा लिखा जाएगा? 2 minus x square। ऐसा क्लियर? अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव है, विच इज राइट नेबरहुड। राइट मींस 1 से वैल्यू ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा है, इट इज क्लियर कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा, दैट विल बी x स्क्वायर। सो दैट इज द डिस्टिंक्विशन, ठीक है। अगर आप चेक करो, अब दोनों के फंक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर फंक्शन सेम हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। +1 में चेक करके दिखाऊंगे, +2 में डायरेक्टली यूज करूंगे। अगर फंक्शन डिफरेंट हो तो लिमिट चेक करनी ही पड़ेगी, चाहे वो +1 है चाहे वो +2 है। क्लियर? चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। x 1 नेगेटिव है तो x को मैं कंप्यूट करूंगा 1 माइनस h, सो इट विल बिकम लिमिट, ऑब्वियसली यहाँ पे h आएगा, h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस x की यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर। h की वैल्यू 0 पुट कर दो, इट विल बिकम 2 माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 2 माइनस 1 which is equals to 2, oh sorry, which is equals to 1 हो गया, ठीक है। हाँ, यानी कि लेफ्ट लिमिट क्या आ गई? जब मैं लेफ्ट से आऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए राइट चेक करते हैं। यहाँ पे x को क्या पुट करूंगा 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट विल बिकम x स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1। अभी h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 1, चलिए मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। अब चेक कीजिए, लेफ्ट लिमिट कितनी आई है? 1, राइट लिमिट कितनी आई है? 2, सो दे आर नॉट इक्वल, सो लेट्स से लिमिट डजंट exist, limit doesn't exist. Is that clear or not? So points to be clear about this. So that's the whole fundamental of limit, not the whole but the starting fundamental of limit. आपको ये चीज़ अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए अगर आप लिमिट्स में आगे बढ़ना चाहते हो।
लिमिट्स को अच्छे से करना चाहते हैं, यू शुड बी क्लियर अबाउट लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, ब्रेक फंक्शन कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अभी क्या है कि इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो मैं वो इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, आप उस लिंक पे जाओगे तो आपको एक क्वेश्चंस की शीट मिलेगी जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो पूरी क्वेश्चन की शीट आपने सॉल्व करनी है जो सेम कॉन्सेप्ट पे होगी। ठीक है, उसे सॉल्व करके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो वो अपने पास भी रख सकते हो, क्योंकि जल्दी उस आंसर शीट की मैं यहाँ पे सोल्यूशन वीडियो डालूंगा, ताकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसमें वो आप यहाँ से सीख कर समझ कर कर पाओ। ठीक है, सो क्वेश्चन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, सो वहाँ पे जाकर आप पूरे क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द मॉड्यूलस फंक्शन, कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसे होता है, मॉड्यूलस फंक्शन का ब्रेक फंक्शन कैसे बनता है, मॉड्यूलस फंक्शन की लिमिट कैसे चेक होती है, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा और बड़ा फंक्शन है। तो फिर हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, उलझ जाते हैं, तो सॉल्व नहीं कर पाते। दिस इज अ बिग हर्डल, बच्चों के लिए बहुत बड़ी हर्डल है ये। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस हर्डल को रिमूव करेंगे ताकि हमारा जो वे है वो स्मूथ और प्रॉपर बन पाए। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहना। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड टुडेस लेक्चर। सो अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। इन केस ऑफ डाउट यू गाइस कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।